हाय हेलो, दिस इज करीम सिद्दीकी। हाउ आर यू? होप करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप जहाँ भी होंगे सेफ होंगे, अच्छे से होंगे। बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों के साथ और मेरे साथ और पूरी दुनिया के साथ क्या चल रहा है। हम सभी बंद हैं और इस पैंडेमिक में आपके लिए बेटर हो कि आप घर पे ही रह के स्टडी करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे तरफ से जो थोड़ा भी हो सके मैं आपकी हेल्प करूँ, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप घर पे इसको पढ़ेंगे, घर पे ही रहेंगे। अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी, आपकी स्वास्थ्य सही रहेगा, तो अनडाउटेडली यू विल गेट नॉलेज इन फ्यूचर। बट इफ यू विल बी affected by COVID-19, then it will be difficult for you and your family and society too. So stay at home, stay healthy, stay connected. The history of accounting, सर क्या ये 11th क्लास की थ्योरी है। We will start with this, and in future we will be making another videos as per convenience or time available to me. Right now I'm not in Delhi, so there is a lack of infrastructure in this locality due to the black marketing, because goods are not supplied, especially electric items. So there is the lack of infrastructure. That's why I am creating this video on laptop. Otherwise I will have been on the camera. But yeah, it will help you. Let's start without losing your time. We are going to study 11th class theory. First 30 minutes will be important for the knowledge, but not for the paper or examination point of view. So study this too, because you will get knowledge for the life, if not for the paper. What is accounting, and why should we choose commerce? Commerce is the subject which directly connect with the business. As the business will grow, commerce will also grow. So I think it's my view. There is a bright future of the commerce because business is growing day by day. Commerce and accounting and business are considered same, but it's different. Yeah, they are connected but not same. Now we'll continue with the history of accounting. History of accounting, is it a new phenomenon or old? In fact, if you say formal accounting, it's new. But you say traditional accounting, it's too old, because it's believed that the very origins of writing itself may have developed out of early marks. कुछ चिन्ह मिले हैं शुरू में. Used to keep accounts of goods at ancient warehouse more than 5,300 years ago. मतलब सीधी बात है कि 5300 साल पहले भी गुड्स के रिकॉर्ड मेंटेन करे जाते थे. और जहां भी किसी चीज के रिकॉर्ड मेंटेन करे जाएं, रखे जाएं, वो क्या होता है आपको पता है? दैट्स द अकाउंटिंग. सो मॉडर्न फेज में अकाउंटिंग नहीं हुए, बट अगर हम ऐसे देखें तो अकाउंटिंग होता रहा है, सदियों से होता रहा है. The notion that pre-numerical counting system predated even written language did not come as surprise to many historians and archaeologists who have long since recognized that the history of human civilization is largely indistinguishable from the history of commerce. जो हिस्टेरियन है उनको पता है कि जब से मानव की हिस्ट्री है तब से आपकी अकाउंटिंग की हिस्ट्री है, कॉमर्स की हिस्ट्री है. The story of origin of monetary system and commerce help provide a historical account of origin and progression of accountancy. I again read monetary system. What is monetary system? Monetary system is the system in which only those transactions can be recorded in the books of account which are in monetary terms. And commerce is the very wide process. It includes the production to distribution.
प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन. सो मॉनेटरी सिस्टम एंड कॉमर्स, monetary system and commerce help provide a historical account of the origins and progression of accountancy. ये दोनों मिलके आपको एक हिस्टोरिकल अकाउंट देते हैं, डिटेल देते हैं कहाँ से ये पैदा हुआ अकाउंटिंग और कैसे कैसे धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करा. नाउ कॉमर्स एंड अकाउंटिंग. As commerce and accounting have run parallel to each other since their respective beginnings. कॉमर्स एंड अकाउंटिंग, मैंने पहले ही बोला था कि बहुत सारे लोग नॉन कॉमर्स के जो स्पेशली लोग होते हैं, इवन यू, बिकॉज यू आर न्यू इन कॉमर्स, यू हैव स्टडीड कंप्लीटेड योर 10th क्लास, बट इन कॉमर्स, इन अकाउंटिंग यू आर न्यू. मेनी ऑफ पीपल थिंक कॉमर्स एंड अकाउंटिंग आर सेम बिकॉज दे रन पैरेलल टू ईच अदर. जब से वो बिगिनिंग करें, जब से वो स्टार्ट हुए हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, इसलिए लोगों को ये लगता है कि दोनों क्या है, सेम है. तो इसी रीजन से जो हिस्टोरियंस हैं, जो हिस्ट्री है अकाउंटिंग की, वो हमेशा सेम इनडिस्टिंग्विशेबल देखा जाता है फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस. लोगों को लगता है कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बिजनेस ऑल आर सेम थिंग, या ऑल आर रिलेटेड बट नॉट सम सेम थिंग. It should be kept in the mind. If you are choosing the commerce, you are new in the commerce, but if you once entered in this field, you will be a commercian. So you should know each and everything. मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि अब कॉमर्स ले चुके हैं तो खुद को आप बिजनेसमैन मान के चलेंगे तो आपको ज़्यादा कॉमर्स समझ में आएगा. अगर आप खुद को कस्टमर मानेंगे तो आपको शायद कम समझ में आए. तो खुद को बिजनेसमैन मान के चलिए तो अकाउंटिंग आपको प्रॉपर समझ में आएगा. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. एंशिएंट अकाउंटिंग एट इजिप्ट, मेसोपोटामिक, ग्रीस एंड रोम. ये देश, कुछ देशों के नाम दे रखे हैं, मिस्र का है, ग्रीस का है, रोम का है. तो आप यहाँ पे ये देंगे उनकी हिस्ट्री क्या रही है अकाउंटिंग में. अगर आपको इंटरेस्ट है तो स्क्रीन को पॉज करेंगे और पढ़ लेंगे, क्योंकि कोई पूछेगा नहीं, रिलेवेंट नहीं है. आगे नेक्स्ट है 14th सेंचुरी डबल एंट्री बुक कीपिंग. डबल एंट्री सिस्टम चमत्कारिक आविष्कार है, खोज है इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग और कॉमर्स. यहाँ आपको ये बातें ध्यान से सुननी है, याद भी रखनी है फॉर लाइफ. होल लाइफ आपको याद होनी चाहिए. तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले अकाउंटिंग हो रही थी, नो डाउट, बट डबल एंट्री सिस्टम और एक तरीके से रिकॉर्डिंग के सिस्टम शुरू हुई 14th सेंचुरी में. 15th सेंचुरी में जो ईयर था 1494, जब ल्यूका पेसियोली ने वेनिस सिटी ऑफ इटली में एक बुक लिखा था, द कंप्यूटर सेट करके. उस बुक में इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम नाम का एक चैप्टर को इंक्लूड करा. अनडाउटेडली बुक अगर इटली की थी तो लैंग्वेज भी थोड़ा अलग ही होएगा. तो वहाँ पे इन्होंने इस बुक में एक चैप्टर का 5 सेक्शन थे उस बुक के, उसके एक सेक्शन में एक डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट को इंक्लूड करा था. वहाँ से डबल एंट्री सिस्टम की इनिशिएशन हुआ, स्टार्ट हुआ, और इसलिए ल्यूका पेसियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, क्योंकि फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा. तो यही बात यहाँ पे लिखा है, एक बार उसको रीड करेंगे फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे. द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट इन अकाउंटेंसी हिस्ट्री इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द डिसमिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुककीपिंग बाय ल्यूका पेसियोली इन 14th सेंचुरी, 1494 टू बी प्रिसाइज. 14th सेंचुरी 1494 याद करेंगे, याद करना होगा तो. इटली, वेनिस सिटी, ये भी याद कर सकते हैं. पेसियोली was much revered in his day and was a friend and contemporary of लियोनार्डो डा विंसी. इग्नोर करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, बस इतना याद करना है. ल्यूका पेसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था. बुक का नाम था द कंप्यूटिस एट स्क्रिप्चर्स. इस बुक में 5 सेक्शन थे, मैथ की बुक थी. उसमें एक बुक 5 सेक्शन में से एक सेक्शन का नाम था डबल एंट्री सिस्टम. दैट्स फाइन. यही है जिसमें उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को डिस्क्राइब करा था, इतना याद करेंगे. और
फादर ऑफ अकाउंटिंग ल्यूका, डबल एंट्री सिस्टम ल्यूका पेसियोली। तो दैट्स फाइन, इतना ही है। द बुक वॉज ट्रांसलेटेड इंटू 5 लैंग्वेज। ओके, बुक पॉपुलर हुआ तो अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। नथिंग न्यू, यू नो वेरी वेल। अगर आप कोई चीज़ बनाते हो वो फेमस होता है, अच्छा होता है, तो मैनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करा जाता है। 19th सेंचुरी, द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग इन यूरोप एंड अमेरिका। इंपोर्टेंट है, सुनेंगे ध्यान से। अमेरिका, इंग्लैंड, यूएस आज ग्लोबल लीडर है एक तरह से। अमेरिका स्पेशली, इंग्लैंड पहले हुआ करता था। इनके बारे में पढ़ेंगे। दो जो मॉडर्न अकाउंटिंग है वो क्या है? मॉडर्न अकाउंटिंग है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न अकाउंटिंग है जहाँ पे अकाउंटिंग को लीगलाइज किया गया। जैसे पहले अगर कोई अकाउंटिंग करता था वो हिसाब किताब रखने का मकसद था, बस मैंने इतना हिसाब किताब रखा है, कोई वो लीगल एविडेंस नहीं होता था। तो सबसे पहले स्कॉटलैंड की जो रानी थी, महारानी थी, क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने स्कॉटलैंड में एक इंस्टीट्यूट को ग्रांट करा ग्लासगो में। उस इंस्टीट्यूट को उन्होंने रॉयल चार्टर की डिग्री दी कि भैया आप रॉयल चार्टर हो। क्यों, क्या है ये बताएंगे अभी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशन ऑफ सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। इन्होंने कहा कि आप किसी चीज़ को साइन करेंगे तो चीज़ वैलिड होगा इन द साइट ऑफ लॉ, क्योंकि आप रॉयल चार्टर हो, आप सीए हो। तो रॉयल चार्टर क्या होता है, सीए क्या होता है, बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि अगर मैं एक अकाउंट्स के बुक में अपना हिसाब करके ले आता हूँ, लॉ ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ में अगर मैं इसको मैं प्रेजेंट करता हूँ, बोलता हूँ ये देखो जी मैंने इतने पैसे कमाए, क्या वो कोर्ट मेरी बात को मानेगी? नहीं, क्योंकि कोर्ट को मे भी वो बोले कि आपकी बात कैसे मान ले, आपने तो कुछ भी लिख दिया होगा। तो कुछ भी लिख दिया होगा तो इससे अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि इससे कोई फायदा ही नहीं होता, क्योंकि कोई मानता ही नहीं आपकी बात। इसलिए हमने क्या करा, इन्होंने इसको एक रॉयल चार्टर बनाया। रॉयल का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट से ऑथराइज है कि आप जो बोल दोगे वो सच है। तो आज हर देश में रॉयल चार्टर, चार्टेड अकाउंटेंट या सीपीए का किसी भी नाम से एक ऐसी संस्था है जो अकाउंटिंग के बुक को अप्रूव करती है। और एक बार अप्रूवल हो गया, एक बार सिग्नेचर हो गया कि हाँ ये जी बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है, तो लॉ उस बात को मानेगा, कोर्ट उस बात को मानेगा, गवर्नमेंट उस बात को मानेगा कि हाँ जी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल सही है। तो ये जो लॉ, गवर्नमेंट और कोर्ट वगैरह को जो एक एविडेंस के रूप में अकाउंट्स दिया गया, उसको बोलते हैं मॉडर्न अकाउंटिंग। इसकी बिगिनिंग 1854 स्कॉटलैंड से हुआ, जब वहाँ की महारानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया ने ग्रांट करा रॉयल चार्टर टू द इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स इन ग्लासगो। उन्होंने एक प्रोफेशन बनाया जिसको सीए बोलते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट। कहीं कहीं इसको सीपीए बोलते हैं, कहीं कहीं कुछ और कुछ बोलते रहते हैं। टुडे द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग सोसाइटी ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट आर फाउंड इन स्कॉटलैंड। सबसे ज़्यादा सोसाइटी है पब्लिक अकाउंटेंट का स्कॉटलैंड में, होना भी चाहिए। स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी, तो ग्रो करके आगे बढ़ा होगा तो ज़्यादा हो भी सकता है, बट आज कोई भी इधर पीछे नहीं है। मज़े की बात, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, in the late 1800s, chartered accountants from Scotland and Britain came to the US to the audit British investment। मतलब अमेरिका में, यूएस में सीए की प्रोफेशन, चार्टेड अकाउंटेंट्स की कब आए? लेट 18 में, मीन्स 1818, 1890, वट एवर लिखा है यहाँ पे। Some of these accountants stayed in the US, setting up accounting practices and becoming the origin of several US accounting firms। जैसे कहीं आप जाते हो और वहीं के हो जाते हो तो सेम हुआ। कुछ अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट यूएस में गए थे, किसके लिए? ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट के ऑडिट के लिए। क्योंकि देखिए, अगर मेरे देश में ऑडिट करना है, कंपलसरी है, और इंडिया में ऑडिट कंपलसरी है, और मान लो श्रीलंका में ऑडिट नहीं होता, और मेरी एक वहाँ पे भी यूनिट है बिजनेस की श्रीलंका में, तो मुझे उसकी यूनिट की भी प्रॉफिट क्या करनी पड़ेगी? इंडिया में दिखानी पड़ेगी। तो प्रॉफिट दिखाने के लिए मुझे वहाँ पे इंडिया से ही सही, लेकिन वहाँ पे क्या, सीए भेजना पड़ेगा, अकाउंटेंट भेजना पड़ेगा, ताकि वो जाके वहाँ के प्रॉफिट को ऑडिट करके आए, तभी तो रिपोर्ट में दिखाएंगे। तो ऐसा ही था, ब्रिटिशर्स थे, उनको रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑडिट करने के लिए अपने अकाउंटेंट्स अमेरिका में भेजे, और वहाँ पे वो लोग ठहर गए। आपने पढ़ा था 10th क्लास में, आपके ही एक बुक से, आपके ही पढ़े हुई चीज़ से एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। आपने पढ़ा था कुर्ग,
इंग्लिश की बुक थी आपकी। तो कुर्ग में आपने क्या पढ़ा था कि जो अलेक्जेंडर के आर्मी आए थे इंडिया में, तो वो वहीं पे स्टे कर, इंडिया में ही स्टे कर गए। तो वहाँ से उनकी फैमिली चल रही है। तो कई बार क्या होता है कि कोई आता है किसी भी रीजन से, अच्छा लग गया, इम्प्रैक्टिकल हो गया, वहीं पे रुक जाता है। तो वैसे ही अकाउंटेंट्स जो आए थे इंग्लैंड से और स्कॉटलैंड से, वो अमेरिका में ही स्टे कर गए। वहाँ पे उन्होंने अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को स्टार्ट करा, और वहाँ पे कुछ यूएस में कुछ अकाउंटिंग फर्म्स की शुरुआत हो गई। तो वही लिखा है, सम ऑफ दीज अकाउंटेंट्स स्टेड इन द यूएस सेटिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड बिकमिंग द ओरिजिन ऑफ सेवरल यूएस अकाउंटिंग फर्म्स। तो ये स्टार्टिंग हुआ वहाँ पे, पहला नेशनल फॉर्म सेटअप हुआ 1887 में। द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट वाज द फोर रनर टू द करेंट अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। आज जो ऑथराइज बॉडी अकाउंटिंग के लिए अमेरिका में हुआ AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। आपके यहाँ इंडिया में क्या है? ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो हर देश में एक ऑथराइज बॉडी होता है जो अकाउंटिंग को अप्रूव करने के लिए किया गया होता है। तो अमेरिका में AICPA है। 20वीं सेंचुरी, द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द अकाउंटिंग प्रोफेशन। देखिए पहले समझ लीजिए क्या ये जो मॉडर्न अकाउंटिंग है 20वीं सेंचुरी की, उसमें क्या हुआ है? उसमें सीधी बात है, स्टैंडर्ड्स की बात होगी, गैप की बात होगी, और एक ऐसा प्रयास है कि पूरे वर्ल्ड की जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो क्या हो, सिमिलर हो, ताकि आजकल का जो बिजनेस है वो ग्लोबल है। हम एक देश में बिजनेस नहीं करते हैं, तो जो हमें बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ भी बनाना हो तो हमें हर देश में सिमिलरिटी दिखे, ताकि बिजनेसमैन को ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फेस ना करना पड़े। तो वही यहाँ पे, द अकाउंटिंग प्रोफेशन इन द 20वीं सेंचुरी डेवलप्ड अराउंड एट फर्स्ट स्टेट रिक्वायरमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट्स। सबसे पहला रिक्वायरमेंट था कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कराना है। ऑडिट करने के लिए ऑथराइज बॉडी जो होती है, जैसे इंडिया में ICAI है, अमेरिका में AICPA है। इसके बाद से तो ये पहला रिक्वायरमेंट था कि आपको आपकी फाइनेंशियल ऑडिट करानी है। ऑडिट क्यों करानी है वो पता ही है, रिलायबल बनाने के लिए, टैक्स लॉज के नज़र में, कोर्ट के नज़र में, गवर्नमेंट के नज़र में, पब्लिक के नज़र में। And then around federal requirements created by Securities Act passed in 1933 and 1934। कुछ सिक्योरिटीज एक्ट भी पास किए गए, जैसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। क्यों किए गए? क्योंकि पब्लिक पैसा लगाती है सिक्योरिटीज में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में। और अगर कंपनी फ्रॉड करे, गलत इंफॉर्मेशन दे, गलत प्रॉफिट दिखाए, तो पब्लिक का पैसा वहाँ पे क्या हो सकता है, डूब सकता है। इसलिए इन सब की रिक्वायरमेंट थी कि नहीं, ऑडिट कराया जाए, ताकि पब्लिक अपना पैसा ये देख के लगाए कि उसे पैसा लगाना भी है कि नहीं लगाना। अगर उसको लग रहा है कि नहीं कंपनी अच्छी है और CA ने सर्टिफाई करा है कि ठीक है कंपनी की प्रॉफिट वर्थ अच्छी है, तो इन्वेस्ट करे। लग रहा है कि नहीं CA ने बोला है कि प्रॉफिट कम है, तो इन्वेस्ट ना करे। तो CA के साइन करने से कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, ये मतलब है। इन द 1970 कांग्रेस एंड SEC डिमांड्स फॉर मोर रिलायबल एंड कंपेरेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेड टू द फाउंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। 1970 में कांग्रेस और SEC ने डिमांड करा कि नहीं रिलायबल हो और कंपेरेबल हो। तो रिलायबल कंपेरेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की मांग थी, तो इसलिए हमारे यहाँ नहीं, इनफैक्ट अमेरिका में 2 बोर्ड सेटअप करे गए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड FASB और GASB, जिसका गवर्नमेंटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ताकि ये स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, स्टैंडर्ड्स का क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा कि जो स्टैंडर्ड लिखा है उसके रूल है एक तरह से, तो रूल को फॉलो करके आपका अकाउंटिंग करेंगे, और हर साल रूल को फॉलो करेंगे, सिमिलर पैटर्न पे अकाउंटिंग करेंगे, तो अनडाउटेडली वो कंपेयर हो सकता है, कंपेरेबल होगा। क्योंकि अगर आप हर साल मेथड बदल देंगे, तरीके बदल देंगे, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता है। तो कंपेरेबल बनाने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए स्टैंडर्ड्स बॉडी बनाई गई, स्टैंडर्ड्स बनाने वाली FASB और GSB। ये आज रिस्पॉन्सिबल हैं कहाँ पे, अमेरिका में, US में,
जी गैप के लिए सर, गैप क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल जो पूरे वर्ल्ड में सामान्य रूप से जनरली एक्सेप्टेड होता है, मतलब जो होता है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि ठीक है सूर्य पूर्व में उगता है, तो ठीक है सबको पता है होता है ऐसा। मैं बोलता हूँ कि बड़े को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है लेकिन प्रिंसिपल है, आपको भी पता है कि हाँ ठीक है बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो कोई ऐसा प्रिंसिपल जो पब्लिक जनरली एक्सेप्ट करती है वो क्या होगा? गैप होगा। अकाउंटिंग में अगर वो प्रिंसिपल तो क्या होगा? गैप ही होगा, लेकिन GAAP वाला गैप होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है 21st सेंचुरी, क्या बोलता है? कुछ तो बोलता है, आपका सेंचुरी है, मॉडर्न है, आपकी जैसा होगा, थोड़ा सा स्मार्ट से। स्मार्ट क्या हो गया इसमें? आप कितने स्मार्ट 21st सेंचुरी के हो, तो ये भी वैसा ही है। बियॉन्ड द इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेशन, मतलब इंडस्ट्री जो अपनी सेल्फ रेगुलेशन करती है वो तो करती है, उसके बाद भी द गवर्नमेंट ऑल्सो सेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्रू एजेंसीज सच एज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एंड लॉ सच एज सोवरेन ऑक्सले एक्ट 2002 पास्ट आफ्टर द एनरॉन एंड वर्ल्ड कम अकाउंटिंग स्कैंडल्स। अमेरिका में एनरॉन एंड वर्ल्ड कम अकाउंटिंग स्कैंडल्स हुआ। इस स्कैंडल्स में बहुत पैसे डूबे इन्वेस्टर्स के, इसलिए इन्होंने क्या करा, सौरभ ने ओक्सली एक्ट 2002 पास करा, जिससे कि इंडस्ट्री अपना रेगुलेशन करे करे, गवर्नमेंट भी रेगुलेशन करेगी, गवर्नमेंट भी आपको देखती रहेगी कि आपकी हरकतें कैसी हैं, आपके लक्षण कैसे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपके दिमाग में कुछ काला पीला चल रहा है और आपके दिमाग के काला पीला ने जनता का पैसा खाली कर दिया। इसलिए गवर्नमेंट भी अब क्या करेगी, वॉच करेगी आपको कि आपके नियत इंटेंशन कैसे चल रहे हैं। चंगू बोला नियत गवर्नमेंट कैसे देखेगी? गवर्नमेंट आपको हमेशा वॉच करेगी, आपके एक्ट को और रेगुलेट करेगी, और उसने बहुत सारे एजेंसीज आपके पीछे लगा रखे हैं, टैक्स एजेंसीज, CA को भी छोड़ रखा है कि ऑडिट करके बताओ कैसा है। उसके बाद से वो अगर चाहे तो इन्वेस्टिगेशन भी करा सकती है आपके हरकतों को देखते हुए। इसलिए 21st सेंचुरी में लोग फ्रॉड हैं, तो गवर्नमेंट भी फ्रॉड को पकड़ने के लिए क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। The 21st century also saw the passage of the Dodd-Frank Act after the recession of 2008। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सुनिए ऐसे ही। 2008 में पूरे वर्ल्ड में रिसेशन था। आजकल इंडिया में उसके लिए कांग्रेस के लोग अपने आप को तारीफ के पूरी बात है कि ठीक है जी, पूरे वर्ल्ड में जब रिसेशन था तो मनमोहन गवर्नमेंट में भारत में रिसेशन नहीं था, तो इसका क्रेडिट देते हैं, देना भी चाहिए, क्योंकि मनमोहन सिंह ने बहुत करा देश के लिए। बट रिसेशन आया था पूरे वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड को दिक्कत हुई कि आखिर में ऐसा क्यों था, तो उन्होंने एक ऐसा एक्ट बनाया कि उन्होंने 16 एरिया को, 16 मेजर एरियाज को रिफॉर्म में इंक्लूड करा। वो एरिया आप एक बार सुन लीजिए, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आपसे कोई नहीं पूछने वाला, आपके लेवल करनी है। पहला क्या है, उन्होंने बोला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करेंगे, ओवरसाइट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसे की स्टेबिलिटी को देखा जाएगा काउंसिल के द्वारा। बैंक्स को मना किया गया कि आप ऐसे ही लोन मत दीजिए। इन्वेस्टिंग पे रेगुलेशन करा जाएगा। स्पॉन्सरिंग हेज फंड, हेज फंड, हेज फंड, हेज फंड क्या होता है? वही फंड जिस पे रिस्क कम करा जाए उसको स्पॉन्सर करेंगे, जिसमें रिस्क कम हो। प्राइवेट इक्विटी फंड्स, और सब पे नज़र रखा गया ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और बैंक जो लोन ले रही है, कंपनी जो लोन ले रही है, वो इन्वेस्ट कहाँ कर रही है, इस पर भी बताया गया कि अब वो इन्वेस्ट कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। तो इस तरह से रिसेशन के बाद डॉड फ्रैंक एक्ट आया। लुकिंग टू द फ्यूचर, भविष्य। सर भविष्य तो बाबा देखते हैं, तो मैं भी तो हूँ बाबा करी, तो जस्ट हम अकाउंटिंग का फ्यूचर देखेंगे, आपका फ्यूचर नहीं देखेंगे। आपका फ्यूचर दिखाना भी मत, आपका फ्यूचर अच्छा होगा जैसा भी होगा। ये बाबा के और किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, मेहनत करो, आगे बढ़ो। Looking to the future, accounting looking to the future have recognized that existing accounting principle in place known as the generally accepted accounting principle, GAAP वाला गैप। आपको पता ही है, बताया था क्या होता था। चंगू मंगू कुछ तो बोल दो। चंगू बोल रहा है सर वो प्रिंसिपल जो जनरली एक्सेप्टेड हो, कहाँ पे,
पूरे ग्लोबल में, पूरे ग्लोब पे। मतलब वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल्स हैं जो नॉर्मली जनरली बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी लॉ रेगुलेशन के लोग एक्सेप्ट करते हैं। बट ये क्या बोल रहा है, आर लाइकली टू गो टू द वे ऑफ द डायनासोर एट सम पॉइंट इन नो इफ इन द नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर। बोला डायनासोर के रास्ते पे चला जाएगा। सर डायनासोर किस रास्ते पे गया था? सुनसान रास्ते पे गया था, सड़क वाले पे किधर गया था? डायनासोर किसी रास्ते पे नहीं गया था, डायनासोर इस दुनिया से विलुप्त हो गया था, खत्म हो गया था। सर तो गैप भी खत्म हो जाएगा? हाँ, अगर नए नए प्रिंसिपल आएंगे, नए नए रूल आएंगे तो गैप खत्म हो जाएगा। क्योंकि आजकल गैप क्या है, एक गाइडेंस है। गाइडेंस लोग मानते नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्टैंडर्ड्स बनाने होते हैं। और जैसे जैसे स्टैंडर्ड्स आएगा, स्टैंडर्ड्स गैप का जगह ले लेगा, क्योंकि गैप से स्टैंडर्ड्स बनता है। स्टैंडर्ड्स इन्फोर्सेबल होता है, गैप इन्फोर्सेबल नहीं होता। तो गैप को देकर स्टैंडर्ड्स बन जाएगा, तो फिर गैप की रिक्वायरमेंट शायद नहीं रहेगी। ये लिख रहा है। The global standard outside of the US in the International Financial Reporting Standard. As global commerce continues to grow, efforts are underway to create consistent accounting standards across border through the widespread adoption of IFRS by American business and accounting firms who wish to continue to participate in the global economy. सर क्या बोल गया? ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं तो वो ग्लोबल है अगर वो सिमिलर है हर देश में। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में लागू है, बस अमेरिका और इंडिया को छोड़ के। बट इन अमेरिकन बिजनेस वाले भी इसको एडॉप्ट कर रहे हैं ताकि वो ग्लोबली इक्वल हो सकें। बट अमेरिका एंड इंडिया ये दो ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने IFRS को एडॉप्ट नहीं करा है। बाकी पूरे वर्ल्ड में एक ही स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के लिए, इसका नाम क्या है? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। सर इंडिया में नहीं है, इंडिया में IFRS नहीं है। इंडिया में AS था, बट मनमोहन सिंह गए थे, मीटिंग हो रही थी जिसमें कि हाँ भाई पूरे वर्ल्ड के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको इक्वल करा गया। तो मनमोहन सिंह ने कहा वी आर डिटर्मिन टू वी आर मतलब इंडियन implement IFRS like standards, IFRS not, IFRS like, IFRS जैसा स्टैंडर्ड हम इम्प्लीमेंट करना चाहते, करने के लिए डिटर्मिंड है। बट बहुत बाद में, उनके करने के बहुत बाद इंडिया में IFRS लाइक स्टैंडर्ड लागू हो चुका है जिसका नाम है इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि सिमिलर है IFRS से। 99% IFRS की जैसा ही है। सर तो उसी को अडोप्ट कर लेते हैं, जैसे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने अडोप्ट कर लिया था, जैसा था वैसे ही अडोप्ट कर लिया IFRS को। तो हमने क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि हमारे यहाँ के लॉज अलग थे। अगर मान लो हमने वैसे ही अडोप्ट कर लिया होता तो हमारे लॉज में और IFRS में कंट्राडिक्शन हो जाता, तो फिर एक नया प्रॉब्लम खड़ा होता। तो बस हमने उतना ही चेंज करा है जितना लोग और लॉ को दिक्कत आई IFRS से। अपने लॉ के अकॉर्डिंग IFRS में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, बाकी IFRS बिल्कुल सिमिलर है। किसकी तरह? इंडेस की तरह। वो लिखा है नाउ इंडिया हैज ऑल्सो स्विच टू IFRS लाइक स्टैंडर्ड एज इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, शॉर्ट में इसको इंडेस ही बोलते हैं। AS खत्म हो चुका है अभी, बट AS की वैल्यू बची नहीं है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, फ्यूचर नहीं आपका वो। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पता है आपको, आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा कॉमर्स में। देयर इज नो बिजनेस लाइक शो बिजनेस बट देयर आर सेवरल बिजनेस लाइक अकाउंटिंग। शो बिजनेस ही बिजनेस है, आजकल जो दिखता है वही बिकता है, और अपने को दिखने की आदत नहीं है। बट अभी ये पेंडेमिक की तरह आ गए वीडियो पे, पेंडेमिक के लिए। बट मैं गलत हूँ, मार्केट में अगर आपको बिकना है तो दिखना पड़ता है। तो वही लिखा है देयर इज नो बिजनेस लाइक शो बिजनेस बट देयर आर सेवरल बिजनेस लाइक अकाउंटिंग। कुछ ऐसे बिजनेस है जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की तरह जो दिखता नहीं है, बस काम होता है उसको। आप किसी कंपनी में जाएंगे तो पता चलेगा कि कंपनी बिजनेस कर रही है, आपसे कोई नहीं चला कंपनी अकाउंटिंग कर रही है। कंपनी की अकाउंटिंग अंदर कमरे में बैठ के होती है, तो शो ऑफ नहीं है बट जरूरी है। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बुक कीपिंग के साथ में। अकाउंटिंग हैज ग्रेटर डिसिप्लिन देन बुक कीपिंग। अकाउंटिंग के लिए ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए बुक कीपिंग से, क्योंकि अकाउंटिंग
और बुक कीपिंग में अगर हम कंपेयर करें तो अकाउंटिंग को ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एक्सपर्टाइज जरूरत होती है। बुक कीपिंग कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है। इट इंक्लूड्स द कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑल्सो। अकाउंटिंग में आपके सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल नॉलेज और एप्लीकेशन दोनों की रिक्वायरमेंट रहेगी। अकाउंटिंग वर्सेज अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग इज द एक्शन और प्रोसेस ऑफ कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स। अकाउंटेंसी डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ एन अकाउंटेंट। क्या बोल रहे हैं? अकाउंटिंग इज द एक्शन और प्रोसेस, मतलब जो आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा है उसको आप एक्शन और प्रोसेस में अगर कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? वो अकाउंटिंग। आपने पढ़ा था अंग्रेजी में नाउन और वर्ब। नाउन क्या था? सिंपल, एक बात, जैसे एडवाइस, सलाह। वर्ब क्या था? एडवाइस, सलाह देना। जब आप एक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो अकाउंटिंग हो जाएगा लाइक वर्ब, अकाउंटेंसी रहेगा लाइक नाउन। अकाउंटेंसी डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंसी क्या करता है? अकाउंटेंसी अकाउंटेंट के ड्यूटीज को डिस्क्राइब करता है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है ये अकाउंटिंग से ब्रॉडर टर्म में अकाउंटिंग इसको देख के की जाती है अकाउंटेंसी को। द पर्सन हु जॉब इज टू कीप इंस्पेक्ट एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल अकाउंट्स। वो पर्सन जिसका जॉब होता है कि भैया वो बुक कीपिंग करे, इंस्पेक्ट करे, इंटरप्रेट करे, वो पूछेगा किससे? अकाउंटेंसी से। कैसे करूं? तो क्या अकाउंटेंसी बोलेगा? मैं बता रहा हूं वैसे करो अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी बताएगा अकाउंटिंग कैसे करनी है। इन रिलेशन टू बिजनेस, अकाउंटेंसी इज इन इफेक्ट द टोटल ऑफ ऑल एक्शन टेकन बाय बिजनेस। तो अकाउंटेंसी कुछ नहीं है, बिजनेस ने जो सारे एक्शन लिए हैं उसी का सम क्या? अकाउंटेंसी है। क्या करने के लिए? सब बेचने के लिए नहीं। टोटल एक्शन टेकन बाय बिजनेस टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, to produce report that allow stakeholders of the business to make informed decision about the financial resources। तो सारे एक्शन जो बिजनेस ने लिया है किसके लिए? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए और रिपोर्ट बनाकर स्टेक होल्डर के सामने प्रोड्यूस करने के लिए। वो क्या है? अकाउंटेंसी है। सर स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो आपसे जुड़े हुए हैं वो आपके स्टेक होल्डर्स। सपोज करो मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आप स्टूडेंट्स जो हैं वो आप लोग हो, आपके पेरेंट्स हैं, हो सकता है अड़ोस पड़ोस के लोग से कुछ लेना देना हो, तो वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो स्टेक होल्डर्स वो हैं जिनका इंटरेस्ट आपके ग्रो करने से और आपके डिक्लाइन करने से अफेक्ट होता है। तो उनको रिपोर्ट चाहिए कि आपकी बिजनेस कैसे चल रही है, ताकि वो आपके बिजनेस के बारे में इन्फॉर्म डिसीजन, ऐसा निर्णय ले सकेंगे जो जानकारी से भरी हुई हो। आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें का डिसीजन लेने के लिए, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें ना करें, आपसे रिलेशन कंटिन्यू करें ना करें, आपको उधार दें ना दें, ये सब पता करने के लिए उनको रिपोर्ट चाहिए। तो अकाउंटेंसी वो सारे एक्शन का सम है जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है और दूसरा रिपोर्ट के रूप में प्रोड्यूस करता है स्टेक होल्डर्स को, जिससे कि वो अपना ये डिसीजन ले सके। अगले क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। द मेन रीजन वाई बिजनेस है जो वाइटल इंटरेस्ट इन अकाउंटेंसी आर लिस्टेड बिलो। मेन वो बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस को क्या क्यों इंटरेस्ट है, बिजनेस को क्या इंटरेस्ट है, क्यों इंटरेस्ट है, किस में? अकाउंटिंग में। आपको पता है फ्री का कुछ नहीं मिलता, आजकल तो ज़माना ऐसा हो गया फ्री का मौत भी नहीं मिला, मरने से पहले भी डॉक्टर को कुछ पैसे खिलाने पड़ते हैं। 70% केसेज में हॉस्पिटल जाके ही होता है काम, आप जो दुनिया से जा रहे हो तो उनका। तो बेटर बात यह है कि जब हर चीज़ के पैसे लगते हैं तो बिजनेस वाले अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के चक्कर में क्यों पड़े? क्योंकि उनको तो इस पर भी खर्च करने पड़ते हैं। क्या खर्च करने पड़ते हैं? पैसे। सर पैसे कैसे खर्च करने पड़ते हैं उनको? लो अकाउंटेंट रखेंगे, वो पैसे जाएगा, और एक कमरा देंगे अगर वो अपने घर पे करवाते हैं, अपने बिजनेस प्रीमाइसेस में कराते हैं, तो वहाँ पे वो उनको सिस्टम देंगे, लैपटॉप वगैरह, ताकि वो अकाउंटिंग कर सकें। तो ये सारे पैसे उनके इन्वॉल्व होते हैं। छोटे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बड़े बिजनेस में एक कमरे में नहीं होगा, इन्वॉल्व होते हैं। तो आखिर वो पैसे क्यों लगाते हैं? उनको इंटरेस्ट क्या है अकाउंटिंग में, ये हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करेंगे। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, सत श्री अकाल। मिलेंगे आपसे छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।